my Insta live, and today's topic is very important, like childhood trauma and how it affects our parenting style. And to discuss this, we have a very special guest with us, like Manjeet, who is a life coach and as well as parenting coach. And we will hear from her how she overcome her childhood trauma, how it affected her postpartum depression, endometriosis, everything we will hear from her. So just let's invite Manjeet. No, means we don't know sometimes why we are reacting like this. So, and it is behind our childhood traumas, and we might have faced something in our childhood. Yes. Yeah, I'm accepting Manjeet. So you were not getting it? Okay, let me send you the invite once again. I think this happens multiple times. Yeah, I have sent you the request, Manjeet, once again. Just try to accept it. Hi, Shashti. Yeah, hi, How are Manjeet. you? Yeah, I'm doing good. What about you? I'm also fine. I'm visible and audible? Yes, perfectly. You're visible and audible. Yes. So, Manjit, I have already given the introduction to our audience that you are a parenting and life coach and how you survived your postpartum depression and endometriosis and how you are helping mothers to overcome all these challenges. So, before I already given, but just I want you to give your introduction to the audience. So, Yes. after that, we can start. Yes. So, first of all, hello everyone. Hello, Shashwati. First of all, I just want to just admire the work you are doing as a parents for parents as a psychologist and parenting coach because it's very important for us as parents to have a support system and someone to listen और क्या चल रहा है हमारी लाइफ में कई बार कोई support नहीं होता. So I totally admire the work you are doing as a coach. So yes, with that, I just want to introduce myself. So I am basically, my name is Manjeet and I am parenting life coach. So I just help mothers to break free from old subconscious patterns of, emotional blocks they are carrying from since childhood so that they can raise emotionally resilient kids so that वो बच्चों को मतलब कॉन्फिडेंटली इंडिपेंडेंट बनाए अपनी लाइफ में हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स होते हैं बचपन से आए होते हैं जिसको जब हम एज अ पेरेंट शो अप करते हैं बच्चे के फ्रंट में तो बहुत बार वी स्टार्टेड रिएक्टिंग विदड्रॉइंग लव. So I generally help mothers in that, in their motherhood journey. And also, as you know, my journey, I also went through postpartum depression and insomnia, and it was very painful time. But yes, I got help from teachers and mentors. So with that, I get to know that it's not about what's happening outside, but it's about what I am not feeling good inside. So the more we work on ourselves, the less we have to work on our kids. Yeah. दिस इज अ मेन Exactly. लाइन जो मेरी लाइफ को बिल्कुल बदल के रख दिया इस चीज ने. यस. Exactly. Yes, that is exactly true, Manjit. Even I also felt in my life when I started this coaching journey, and when I became parent, then only I was able to understand the problem. Yes. So let's Yes. start, Manjit. So, and can you explain means what is childhood trauma, and means is it common or means it will happen with everyone, or how it is? Yes. So first of all, childhood trauma is nothing. It's just a distressing and overwhelming situation experience when the child is not able to process that situation, that experience. So it can be physical form में हो सकता है कि physically उसको punish किया गया और वो process नहीं कर पाया उसका mind, उसका brain.
और इमोशनली उसको अनअवेलेबल, उसको इमोशंस को समझा नहीं गया, अनहर्ड अनसीन फील हुआ बच्चे को बचपन में, तो कोई भी उसके इमोशंस को वैलिडेट नहीं कर रहा था। दीज ऑल थिंग्स जो बच्चा प्रोसेस नहीं कर पाया उस मोमेंट पर, कॉप नहीं कर पाया कि इसको कैसे रेगुलेट करना है, एक्सप्रेस करना है, बिकॉज वी आर बॉर्न टू एक्सप्रेस। तो हम right. पैदा ही एक्सप्रेस करने के लिए होते हैं। जब हम बच्चे होते हैं, तो बच्चे जब होते हैं छोटे, तो हमें एक्सप्रेस करने का तरीका नहीं पता होता। ओनली वन वे, दैट इज क्राइंग, Right. क्राइंग एंड थ्रोइंग टेंट। सो इफ Right. वी अंडरस्टैंड कि चाइल्ड इज वो एक्सप्रेस करना चाहता है, अगर उसको एक्सप्रेस करने नहीं दिया गया है बिकॉज ऑफ इमोशन निग्लेक्ट और फिजिकल पनिशमेंट के साथ, तो वो उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा के रूप में उसकी बॉडी में स्टोर हो जाएगा फॉर फुल लाइफ। अगर वो उसको उसके बारे में अगर उसको अवेयरनेस नहीं होगी, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं आएगा, तो ऐसे ही 7 years 10 years ऐसे ही कितने सारे साल पास ऑन होते रहते हैं। और जब वी बिकम अ पेरेंट, और जब हमारे साथ कनेक्शंस बनते हैं, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, देन वी गॉट ट्रिगर्ड। तो वो Right. सारी Right. चीजें फ्लैशबैक होती है। यस, दैट इज चाइल्डहुड Hmm. ट्रॉमा। या So somewhere means it is quite common, right? Means common in the sense I am saying कि as a parent हम तो हमारे बच्चे को कुछ बोल देते हैं, कभी कभी पनिश कर देते हैं, तो मतलब but how it is going to affect our child that we don't यस, know. So नो, means so intentionally or unintentionally somehow we do this. यस। Means even our parents did this. Maybe they were not aware that time. Yes. यस, अवेयरनेस की कमी होने के कारण ना, वी कीप ऑन यू आर रिपीटिंग द सेम थिंग्स व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड। वी कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग्स व्हाट वी हैव एक्सपीरियंस्ड, एंड दैट एक्सपीरियंस इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी एज अ मेमोरी सेल्स। तो वो सभी Right. कुछ हमारी बॉडी में स्टोर हो चुका है। हमें लगता है दैट वी हैव हमने 15 years के हो गए, 20 25 के हो गए, बड़े हो गए, शादी कर ली, जॉब करने लगे हैं, अभी 40 years के हो गए, बट नो। अगर हमारा पास्ट का जो इमोशनल बैगेज है वो अभी हमने हील नहीं किया है, तो वो रिफ्लेक्ट करेगा, फ्लैशबैक करेगा जब कोई भी बाहर से सिचुएशन आएगी। So Right. it's not about what happened to us at that time. It's about how we process that situation, how we felt Right. at that moment. Hmm. Yes. So how it affects our parenting style? Hmm. So it affects a lot. It's very difficult, to make a connection with the child, because only one way is only one way possible कि हम बच्चे को अपनी बात समझा सकें, या उसकी बात उसको अपनी बात मनवा सकें, अगर उसकी बेटरमेंट के लिए कहते, दैट इज कनेक्शन। So if we are not connected with ourselves, so our parenting style will be like a passive parenting style, जिसमें सिर्फ डिमांड्स पूरी होती हैं, या फिर इस बच्चे को विदाउट एनी बाउंड्री हम बहुत सारी उसकी विश लिस्ट पूरी कर देते हैं। दैट इज ओनली दैट, उसमें कनेक्शन नहीं है। देयर इज अ डैमेज, because child is seeking from us is connection, love, appreciation, compassion, empathy. When we are lacking those skills, those all the emotions, because we don't have right जो रोल मॉडल था हमारी लाइफ में, दैट इज Hmm. मिसिंग। तो उससे हमारा पेरेंटिंग स्टाइल बहुत इफेक्ट करेगा कि बच्चे को हम किस तरीके से उसकी बात समझते हैं, उसके साथ बैठते हैं, क्वालिटी टाइम कैसा स्पेंड करते हैं, और रात को सोने से पहले हमारा उसके साथ कनेक्शन क्या होता है, सुबह उठने के टाइम पर हमारा कनेक्शन क्या होता है। इट इफेक्ट्स ऑल द पेरेंटिंग की पूरी जो होता है उसको पूरी तरह से जर्नी को इफेक्ट करता है हमारा पेरेंटिंग स्टाइल। Right. Right. बिकॉज कनेक्शन की कमी होने के कारण, बिकॉज अगर हमें चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, हमारे चाइल्डहुड बैड एक्सपीरियंस है, कनेक्शन की कमी होने के कारण हम बाहर की दुनिया, जब सेल्फ कनेक्टेड नहीं है, तो बाहर के चाइल्ड कनेक्शन बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। फैमिली के साथ कनेक्शन बनाना, इन लॉज के साथ कनेक्शन बनाना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज द मोर वी फोकस ऑन आउटसाइड पहले, द मोर वी आर ऑन टू द जर्नी ऑफ सफरिंग इनसाइड। Right. Right. यस, सो पेरेंटिंग स्टाइल अफेक्ट्स लॉट कि उसको Yes. पेरेंट कैसे Yes. कर रहे हैं बच्चे को। Yeah, actually, I have felt it in my life when I became parent. No, so before becoming parent, I used to think like I will never hit my child. I used to feel like that because I faced this in my childhood, right? I will not say anything to him. He is just a small kid. No, like that I used to think. But once I became parent, means I don't know in my mind, but I was thinking that watching like all these behaviors, what I have faced, I was repeating those small Yes. things while
while he was studying, no, instead of, I was not patient at all. I used to hit him. So then I Hmm. realized that I don't want this, what I Hmm. faced. But even Yes. though I don't want, I'm repeating that. Yes. So So this happens because I think I want to add one line. क्यों होता है ऐसे? जब हमें वो चीज जो हमें चाहिए मिली नहीं होती, तो या तो हम वो चीज को ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, या हम उसको अवॉइड करने लगते हैं। hmm, सो इट्स वेरी डीप, अगर इसको हम ध्यान से समझें कि उसको या तो हम बहुत कहेंगे कि मैंने अपने बच्चे के साथ ऐसे नहीं करना जो मेरे साथ हुआ है, एंड वी hmm, बिकम ओवर प्रोटेक्टिव एंड ओवर मैनेजिंग द सिचुएशन, जिससे एंग्जाइटी और right, स्ट्रेस और बढ़ेगा, कनेक्शन लूज होगा। hmm, या तो हम right, अवॉइड करने लगते हैं, डिस्कनेक्टिंग hmm, फ्रॉम द चाइल्ड। सो जिससे hmm, पेरेंट्स बहुत अफेक्ट करती है। यस। exactly, yes, yes, exactly. So और एक क्वेश्चन जो मैं सोच रही थी, मतलब ये मतलब ऑलरेडी यू हैव आंसर्ड लाइक दिस, बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉमा वी एज अ पेरेंट वी बिकम ओवर प्रोटेक्टिव और समटाइम्स वी बिकम डिस्टेंट, राइट? सो और एक चीज जो है कि ये ट्रॉमा के वजह से मैंने नोटिस किया है कि we that connection between our child or us na, it will become distance, maybe because of our behavior or something. So why you think it becomes like that? क्यों हम distant हो जाते हैं child से? बिकॉज जो अगर हम खुद से डिस्कनेक्टेड हैं, तो हम बच्चे के साथ ऑब्वियसली डिस्कनेक्टेड होंगे। अगर हम खुद का अगर हमारा ही कप खाली है, जो हमने इट्स इसको एक ड्राई प्लांट के एग्जाम्पल से समझते हैं, कि अगर हमारा जो प्लांट है वो इतना ड्राई हो चुका है, अगर उसको पानी नहीं मिला लव के रूप में, एप्रिसिएशन के रूप में, कंपैशन के रूप में, उसको जो चीजें बच्चे ने सुननी थी उस टाइम पर वो डिजर्व करता था, दैट यू आर गुड, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, आई एम प्राउड ऑफ यू बिकॉज यू आर ट्राइंग। सो वो एप्रिसिएशन के जो सेंटेंसेस उसने अपने पेरेंट्स से सुनने थे, उसने नहीं सुने हैं, तो अभी उसका जो कप है वो खाली है, उसका जो प्लांट है वो ड्राई है। तो अगर वो जाकर उसका जो बच्चा आएगा सामने, वो पर्सन का जब वो बड़ा अडल्ट बनेगा, उसका बच्चा सामने से आता है लाइक अ सीड, तो अभी सीड को तो पानी चाहिए। अगर हमारा ही प्लांट ड्राई है, अगर हमारे पास ही लव की, एम्पथी की, कंपैशन की कमी है, हमारा प्लांट सूख चुका है, तो हम नए सीड को पानी कैसे देंगे? सो इट इज पॉसिबल कि हम अपने आप को पहले पानी देना शुरू करें, हमारा जो प्लांट ड्राई है उसको दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट करें, पढ़ना स्टार्ट करें, पेरेंटिंग की स्ट्रैटेजी सीखने स्टार्ट करें, अपनी एनर्जी पर फोकस करना, अपनी माइंडसेट पर फोकस करना स्टार्ट करें। इवेंचुअली जो हमारे सामने चाइल्ड इज रिफ्लेक्शन ऑफ अस, वी आर Right. मिरर। सो बच्चा कभी भी बाहर से कुछ भी मिसबिहेव करता है, दैट इज हाउ वी रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन, रिएक्ट टू दैट सिचुएशन, दैट इज रिफ्लेक्शन, वो हमारी रिफ्लेक्शन है। तो जितना Right. ज्यादा हम बाहर की सिचुएशन को फिक्स करते जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले जो मिरर है, जो शीशा है, उसको क्लीन करना पड़ेगा, उसमें से डस्ट Correct. को हटाना पड़ेगा। सो Hmm. इसी तरह खुद को पहले पानी दें और खुद का कप भरें, तभी हम बच्चे को वाटर कर पाएंगे प्यार के साथ और एम्पथी के साथ। Right. सो Right. यस। Hmm. और एक है कि मतलब हैव यू नोटिस लाइक some of the child behaviors, how they're behaving with us, that will trigger our childhood trauma sometimes. So means यस। how, कैसे होता है ये? मतलब हम इतना सीख रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं पेरेंटिंग के बारे में, but somehow some of their behaviors it will trigger that points. यस यस, डेफिनेटली आज ही मेरे साथ हुआ। तो इट्स बिकॉज जो हमारे जो हम बचपन में फील करते हैं ना, पहले 7 साल हमारी हिप्नोसिस टाइम चलता है हम सभी को। पहले 5 से 7 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा ब्रेन बनता है। तो ब्रेन में बहुत सारे न्यूरल पाथवे बनते हैं। तो उस टाइम पर जो भी बाहर का एनवायरनमेंट है, अगर बाहर का एनवायरनमेंट बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाला है, बहुत स्ट्रेस वाला है, तो वो हमारे अंदर न्यूरल पाथवे बनने लगते हैं, मेमोरी सेल्स हमारे हर एक ऑर्गन में, जैसे हमारे लंग्स हैं, हमारी किडनीज हैं, एवरी ऑर्गन उसके पास दिमाग है, हर ऑर्गन के पास, और गट के पास भी ब्रेन है, हमारा जो पेट है। तो वो सारी चीजें जो हमने फील की है बॉडी के थ्रू, वो स्टोर हो जाती हैं। तो अनप्रोसेस्ड इमोशन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं। हम जैसे इग्नोर करते जाएंगे, आगे बढ़ गए हैं, बट वो बाहर से जब ट्रिगर आता है, तो वो पोक करता है बाहर से, कोई पर्सन, कोई सिचुएशन आती है, ट्रिगर्स आर ऑलवेज देयर, अभी भी होंगे। अभी हम बात करें यहाँ पर लॉट्स ऑफ ट्रिगर्स, आपके Right. आसपास भी लॉट्स ऑफ ट्रिगर्स। बट Right. हम कैसे उनको प्रोसेस करते हैं, हम कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज इन आवर कंट्रोल।
तो अभी राइट अगर हमको नहीं पता है कि कैसे उसको प्रोसेस करना है, रिस्पॉन्ड करना है, दो देन वी विल रिएक्ट। तो रिएक्ट करने से क्या होगा, बाहर डैमेज होगा, हमारी इंटरनल डैमेज होगा, और वो जो ट्रॉमा है वो और डीप हो जाएगा, वो जो वूंड है ना बचपन का वो और डीप हो जाएगा, और उसको मेडिसिन की जरूरत है, हीलिंग की जरूरत है। द राइट मोर वी फोकसिंग ऑन दैट। होता है ना कि बाहर अगर हमारे कट है, तो अगर हम हम्म उसको दोबारा से हाथ लगाएं, कहते हैं यहाँ पर कट है, इसको हाथ मत लगाना, इसको ऐसे हील होने दो। बट अगर बार बार उसको जाकर हम हाथ लगाएंगे तो वो और स्ट्रेच होगा, और करेक्ट उसमें से खून निकलेगा। यस, द सेम हम्म हैपेंड विद अस। देन वी डोंट राइट वांट टू शाउट, बट द सिचुएशंस ट्रिगरिंग अस अगेन एंड अगेन। triggering us right. Hmm. So या before I move to my other questions, I will ask our viewers if they have any question, they can put it in the comment section, and definitely we will try to answer it. Okay, so and what are some signs that our reaction as parent may be trauma driven, not child driven? यस, अभी आपने दिस बोला इज है मतलब हाँ already you answered it means sometimes it is not about the child नॉट अबाउट द about चाइल्ड। us, यस, right? बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो बोलने का तरीका है, तो उससे कैसे पता चलता है कि हम ट्रॉमा में थे, या हम ट्रॉमा मतलब स्टोर है हमारे बॉडी में। और बहुत सारी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई भी पर्सन को आप नोटिस कर रहे हो और वो बार बार अपनी इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरों पर डाल रहा है कि बिकॉज ऑफ यू आई Hmm. एम फीलिंग दिस, बिकॉज ऑफ Right. यू माई लाइफ इज लाइक दिस, बिकॉज ऑफ यू आई एम सफरिंग लाइक दिस। तो दैट इज ट्रॉमा ड्रिवन पर्सन। बट इंस्टेड ऑफ दैट, अगर हम ये ना कहें, बट ये कहें कि आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई इमोशंस एंड माई लाइफ, दैट इज चाइल्ड सेंटर्ड इमोशन। Hmm. कि बच्चा अभी टैंट्रम थ्रो कर रहा है, उस टाइम पर एक सिचुएशन लेते हैं कि बच्चा बहुत इमोशनली डाउन है। अगर हम ट्रॉमा ड्रिवन है तो हम क्या कहेंगे कि अभी इसका फिर से ड्रामा शुरू हो गया, शुरू हो अभी गया। इसने फिर से मेरा टाइम वेस्ट करना है, अभी 1 घंटा हम्म इसके ऊपर अपना दिमाग खराब करूंगी मैं, अभी हम्म घर का काम भी है, ये एग्जैक्ट भी है, वो भी है, वो भी, अभी इसका भी शुरू हो गया। दैट इज ट्रॉमा ड्रिवन। सो चाइल्ड एग्जैक्ट सेंटर्ड में क्या आएगा, हम वो अपने आप से सेल्फ टॉक करेंगे, कोई बात नहीं, वो छोटा बच्चा है, उसका टाइम पीरियड चल रहा है ये वाला, उसमें नहीं, उसमें अभी कैपेबिलिटी है। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड बिकॉज आई एम ग्रोन अप एज अडल्ट। तो अभी मेरा तो राइट। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बन गया है, उसका नहीं बना है, तो मुझे हम्म उसके लेवल पर जाकर उसकी बात को समझना पड़ेगा। एंड दैट इज दैट इज अ पावर ऑफ एम्पथी जो हम में आती है एग्जैक्टली। एज अ मदर। तो बच्चा इससे हम्म एम्पथी सीखता है। तो जितना भी हम ऐसे कनेक्शन बनाएंगे ना कि उसके लेवल पर जाकर उसकी बात को, उसके इमोशंस को वैलिडेट करेंगे। और वैलिडेशन का मतलब ये नहीं है कि हमने उसको पावर दे दी है कि तुम कुछ भी करो, नो। नो वैलिडेशन विद प्रॉपर बाउंड्रीज, कि अगर बच्चा हम्म हिट कर रहा है तो हमने वैलिडेट किया, ठीक है बच्चे हिट कर लो, नो। सो हम्म इसमें मिस्टेक हो जाती है कि हम वैलिडेशन का मतलब ये नहीं है, उसके इमोशन जो फील कर रहा है दैट आर वैलिड, बट विथ प्रॉपर एग्जैक्टली। बाउंड्रीज, फॉर्म बाउंड्रीज के साथ। तो हम्म विद दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि क्यों ऐसा होता है और कैसे इसको हैंडल करना है, और कैसे हमने चाइल्ड सेंटर्ड रहना है जितना हो सकता है। आएंगे ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आएंगी जहां पर आप यू फील के मैं ना हूं चाइल्ड सेंटर्ड, ट्रॉमा के वो साइंस आते हैं। बट हमने एवरी टाइम जितना ज्यादा अपने आप को समझाते जाएंगे ना इस चीज को, तो धीरे धीरे वो मसल बिल्ड होने लगेगा एम्पथी का, राइट। कंपैशन, यस, हम्म अंडरस्टैंडिंग का। धीरे धीरे इट्स हम्म वेरी इजी जब हम स्टार्ट करें, इट्स ऑल स्टार्टेड विद अवेयरनेस। यस यस। और एक चीज मंजित जो मैं सोच रही थी मतलब कभी कभी पेरेंट्स को पता नहीं चलता कि whether they have trauma or not, because sometimes our parents also or maybe family members, we will not validate, we will just dismiss the feelings what we were going through कि this is common, everyone face this, every child does this. So these are the common statement we used to hear, right? So because of this some of the parents or some of the mothers, maybe they are having some trauma kind of situations, but they will just dismiss their feeling and they will keep on continuing those behaviors. तो आपको क्या लगता है मतलब कैसे समझ में आएगा कि देर इज समथिंग रॉन्ग विथ मी, मे बी दिस इज नॉट द राइट वे आई एम डूइंग दिस, सो कैसे सो पता फॉर चलता है? यस, अगर तो हम इस चीज को समझे ध्यान से कि हमारा जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बच्चे के साथ ही मैटर करता है, ना कि शॉर्ट टर्म। तो जो भी चीजें ट्रॉमेटिक होती हैं, अगर हम वही रिएक्शन करते हैं वो शॉर्ट टर्म काम आएगा, जैसे हमारे साथ काम आया ना, बचपन में हिट कर दिया,
शॉर्ट टर्म के लिए बात हम्म मान ली, बचपन हम्म में शाउट कर दिया, कंट्रोल कर दिया, तो वो शॉर्ट टर्म चीजें हैं, शॉर्ट टर्म से डैमेज राइट होगा, शॉर्ट टर्म से राइट हमारा डिस्कनेक्शन खुद से भी होगा और बच्चे से भी होगा, स्पाउस से भी होगा, फैमिली मेंबर से भी होगा। तो हमने राइट शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचना है। शॉर्ट टर्म इज जस्ट यू नो दैट इज ऑटो पायलट, दैट इज ऑटो पायलट मोड। तो बेसिकली वी एज पेरेंट्स, जो हम पेरेंट्स के जो होते हैं हमारी लाइफ, हम ऑटो पायलट पर जीते हैं। हमें लगता है कि न्यू ईयर आ गया, न्यू फेस्टिवल आ गया, नो। तो वही चीजें जो हमारे अंदर चाइल्डहुड में प्रोसेस हुई थी वो ऑटो पायलट पर चलती रहती हैं, एंड वी स्टार्टेड लिविंग आवर पास्ट, नॉट फ्यूचर। वी बिकम ड्रामा फोकस्ड उस टाइम पर, नॉट गोल फोकस्ड। सो इसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि हमने अपनी लाइफ में ड्रामा क्रिएट नहीं करना है, ड्रामा सेंटर्ड नहीं होना है, गोल फोकस्ड होना है। बिकॉज हमारे बच्चे का फ्यूचर है, हमारे बच्चे का प्रेजेंट मोमेंट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे राइट पहले अवेयरनेस के साथ, अवेयरनेस हो गई हमें, अगर हम सुन रहे हैं ये चीज, तो उसके बाद एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। एंड हम्म इट्स वेरी वेरी, बहुत सारे पेरेंट्स के लिए एक्सेप्ट करना कि मेरे से मिस्टेक हुई है हम्म बहुत मुश्किल हो मुश्किल जाता है। है। तो प्लीज करेक्ट। अपनी ईगो को हमने साइड में रखना है, क्योंकि बिकॉज वी आर ऑल्सो लर्निंग। अगर इफ आवर चाइल्ड इज बॉर्न, अभी उसका जन्म हुआ है, तो एज अ मदर हमारा भी साथ में ही, एज अ पेरेंट्स हमारा भी साथ में ही बर्थ हुआ है। तो हम्म हमारी एज बच्चे के पैदा होने की एज से ज्यादा नहीं है, उतनी ही है। नहीं। सो दिस वी हैव टू रिमेम्बर कि वो भी बड़ा हो रहा है, दैट लाइक अ सीड, आई एम ऑल्सो रेजिंग लाइक अ सीड। तो जब हमें राइट। ये चीज आती है ना, तो हम्म एम्पथी पैदा होती है हमारे अंदर। और विद एम्पथी, एम्पथी के साथ आती है एक्सेप्टेंस, सेल्फ लव, सेल्फ हम्म एक्सेप्टेंस। तो मैं जैसी भी हूँ, जो भी मेरे साथ हुआ, जो जो भी मेरे बच्चे के साथ हो गया मेरे से अनइंटेंशनली, अभी वो चीजों को मैंने इनहेरिट नहीं करना है अपने बच्चे के फ्यूचर में। राइट। हम्म वी हैव टू कमिट दिस हम्म सो दैट डैमेज कम हो। राइट। सो इससे धीरे धीरे करके वी कैन, बहुत इजी है, बहुत अच्छी जर्नी है, अगर हम इसको अवेयरनेस से स्टार्ट करें, स्टेप बाय स्टेप लें, और प्रॉपर ट्रेनिंग लें, इसकी टेक्निक सीखें, इनकी बहुत इजी टेक्निक्स एग्जैक्टली। हैं। और ऐसे हम्म अच्छे इन्वायरमेंट में रहें जिनमें लोग आपको ये कहें कि ये चीजें सीखनी अच्छी हैं, हम्म अपने पर काम करना अच्छा है। बिकॉज हमारा जो माइंड सेट होता होता है, दैट इज ओनली द लिमिटर इन अर लाइफ। हमारा जो माइंड हम्म सेट है, राइट। कोई हमें रोकने वाला नहीं है, बाहर का कोई बंदा हमारा हाथ पकड़कर नहीं कहने वाला कि आज एक्सरसाइज मत करो। इट्स आवर माइंड। वही हमारा एग्जैक्टली। माइंड ही है जो हमें कह देता है, एक्सक्यूज दे देता है। कोई बाहर से आकर नहीं कहेगा कि कोई बात नहीं, जैसे होता है बच्चे बड़े हो जाते हैं, नो। हम्म आपने अपने दिमाग को समझाना है, माइंड को, कि बच्चा मेरा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद की और बच्चे की। तो मैंने ही देखना है इसको, इसलिए मुझे सीखना पड़ेगा, अपने आप करेक्ट। को से प्रोसेस में डालना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म यस। एग्जैक्टली। और एक चीज मंजीत के, मैंने मेरे लाइफ में भी देखा है, आपके लाइफ में भी देखा है कि ये जो चाइल्डहुड ट्रॉमा, हु हैव फेस्ड प्रॉब्लम्स इन देयर चाइल्डहुड और स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, sometimes it is not always like a big problem, maybe small small things also it might have affected us in a longer way. So ये कुछ कुछ फिजिकल प्रॉब्लम होके भी हमारे अंदर दिखाई देता है. So can you यस। please just highlight some of the points on this, means how this will affect physically on us? यस। तो ये कैसे स्टार्ट होता है? पहले थॉट प्रोसेस से स्टार्ट होता है। जब हम छोटे होते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस बन रहा होता है, बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम। तो जब हमें बाहर से हमारे पेरेंट्स के द्वारा, जो घर में लोग रहते हैं उनके द्वारा इन्वायरमेंट मिलता है, एजुकेशन के द्वारा, अगर हम जॉब करने जा रहे हैं वहां से हमें इन्वायरमेंट मिलता है, जो भी इन्वायरमेंट पहले 7 सालों में मिलता है हमें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम इन अवर चाइल्ड लाइफ। तो वो Right. इन्वायरमेंट से हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है, थिंकिंग प्रोसेस बनता है। ये तरीका बनता है कि चाहे लाइफ में कोई भी सिचुएशन डिफिकल्ट से डिफिकल्ट आ जाए, तो मैंने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। Hmm. सो जब ये चीज मसल बिल्ड नहीं होता, इनिशियल ईयर्स में बिलीफ सिस्टम अच्छा नहीं बनता, वैल्यू सिस्टम बहुत वीक होता है, तो धीरे धीरे करके हम नेगेटिव सोचने लगते हैं, विक्टिमहुड में चले जाते हैं। हम खुद के ही दुश्मन बनने लगते हैं, खुद से नफरत करने लगते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ कि जब मैंने इतने सालों तक अपने माइंडसेट पर काम नहीं किया, और जब मेरे सामने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, तो उस टाइम पर मैं क्या कर रही थी, सब कुछ अपने हस्बैंड पर डाल रही थी कि इनकी वजह से मैंने शादी की तो मेरा लाइफ खराब हो गया। इन लॉज पर डाल रही थी कि इनकी वजह से मैंने इनकी बात मानी और बच्चा कर लिया तो मेरी लाइफ खराब हुई, नो। तो हमने उस टाइम पर विक्टिमहुड के मोड में जब चले जाते हैं, तो वी Hmm. मैनिफेस्ट ऑल द थिंकिंग, क्योंकि हमारी बॉडी का एक एक जो ऑर्गन है ना, वो बात करता है हमसे।
न्यूरल पाथवेज है हमारी ब्रेन के साथ, गट के साथ कनेक्टेड है सभी ऑर्गन्स। तो वो कहीं ना कहीं हमारा इमोशन बॉडी में चला जाता है, जो नेगेटिव इमोशन है। और जब कितने साल निकलते हैं, काफी हम ये भी देखते हैं कि लड़कियां होती हैं, पुबर्टी हिट करती है, उनको पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस दे आर फेसिंग। उनको स्ट्रेस को Right. हैंडल करना सिखाया नहीं गया। आई हैव आल्सो गॉन थ्रू दैट। एंडोमेट्रियोसिस इज अ प्रॉब्लम लिंक्ड विद हॉर्मोन्स। और जब Right. बच्चे बॉयज को अच्छे से समझा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, तो वो जब शादी होती है उनकी, तो अपनी वाइफ्स के साथ वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपने इमोशंस को। एम्पैथी Exactly. की कमी हो जाती है। एक एक यूनिट में हम काम नहीं कर पाते, पेरेंटिंग कंफ्लिक्ट आने लगते हैं, एज अ टीम Mm. बच्चे को रेज नहीं कर पाते। तो ये Right. जनरेशनल पैटर्न्स आगे आगे बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। हमारे बच्चे से हमसे हमारे बच्चे की तरफ, जब बच्चा बड़ा होगा तो उसके फैमिली की तरफ, उनके जो रिलेशन होंगे उनकी तरफ। तो ये सारी चीजें हमारी बॉडी में आ जाती हैं। कैंसर इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ नेगेटिव थिंकिंग ऑफ वन सिंगल थॉट। एक सिंगल Right. नेगेटिव थॉट इज इनफ टू Mm. हमें कैंसर करने के लिए। इनफ है सिंगल नेगेटिव थॉट, बिकॉज लूप चलता है। एक नेगेटिव Correct. थॉट उसका जुड़ता जाएगा, विक्टिमहुड का लूप। Mm. सो Mm. दिस वे बॉडी में बीमारियां बनने लगती हैं। जैसे आईबीएस मुझे Exactly. डायग्नोस हुआ, एसिडिटी। Mm. सबसे पहले शुरुआत मेरी लाइफ की इसी से हुई, Right. 2016 में, कि मुझे Right. एंजाइटी थी, एसिड बनता था बहुत, गट Mm. हेल्थ खराब हो गया। Right. सो हमने नोटिस करना है हमारी बॉडी के साइंस को। हमारी बॉडी बहुत कुछ बताती है हमें, बट हम नहीं कॉन्शियसली सुन पाते। सो बी Right. अवेयर Right. कि आपकी बॉडी क्या बताना चाहती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Mm, right. जी। Even I too have the same, so many of the symptoms. Later, I came to know it is because of those periods. So that is what means. It is not always mental, and somehow mental thing also it will come out as a physical कम आउट। issues in us. Yes. So यस। yes, we have to be careful because when we are understanding that these are the things happening, so we have to go inside of our past also sometimes what happened, why it is happening, so like यस। that. यस। So next, let me go to the next question, like mm, and can you give some example? Maybe parents who are there, they will not understand all these things, who did not face it. So if you give some example, like how trauma-driven parenting moment, so that they will understand, and how being aware of that issue helped to change it. यस। सो अगर हम चाहते हैं कि जो ट्रॉमा ड्रिवन पेरेंटिंग अगर हम नोटिस कर पाते हैं, पहले तो अवेयरनेस से होगा। जैसे मैंने जो सेंटेंस के, बिकॉज वी आर बाहर की दुनिया पर हम फोकस करने लगते हैं, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से ये हुआ, तो दैट इज ट्रॉमा ड्रिवन पेरेंटिंग। तो उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं? वी कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस। मान लीजिए कि आपका आपके बच्चे के साथ कंफ्लिक्ट हो गया, बच्चा बैक टॉक कर रहा है, एट दैट वेरी पॉइंट हम क्या कर सकते हैं? या फिर अपने हस्बैंड के साथ, स्पाउस के साथ कंफ्लिक्ट हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं उस टाइम पर कि ट्रॉमा क्रिएट ना हो, हमारा ट्रॉमा दूसरे की तरफ ना जाए और डैमेज कम हो? पहले Right. तो जितना हो सके पॉज करें। क्योंकि अगर हमारे पास एक प्रॉपर टूल नहीं है वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, तो बेस्ट वे इज टेक पॉज, ब्रीथ। ब्रीदिंग हमारे पास ऐसा टूल है हमारी बॉडी में जो ऑटो पायलट पर है। तो ऑटो पायलट वाला ब्रीदिंग जो है ना, वो हमारे लिए खतरनाक बन जाता है। हमने ऑटो पायलट वाला ब्रीदिंग समझना है और कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी स्टार्ट करनी है, कॉन्शियसली। Right. जितना ज्यादा हम कॉन्शियस ब्रीदिंग की तरफ फोकस करेंगे, कॉन्शियस डिसीजंस ले सकेंगे। दैट आर नॉट Exactly. ट्रॉमा ड्रिवन, दैट विल बी एम्पथी सेंटर्ड, कंपैशन Mm. सेंटर्ड, वो सारे जो डिसीजंस होंगे। तो उस टाइम पर आपने क्या करना है? डिले दैट सिचुएशन, जहां पर आपको लगता है डैमेज हो जाएगा, उस सिचुएशन से Mm. परे हो जाए, बोले Mm. मत। स्टेप ये ऑलवेज वर्क नहीं करेगा, बिकॉज हम ऑटो Yes. पायलट पर Yes. हैं। Mm. उसके बाद हमें नेक्स्ट चीज समझनी पड़ेगी। वहां से तो चले गए, डोर बंद कर लिया, अकेले बैठ गए, अभी क्या करना है? ये इमोशन फिर से आएगा, ये Mm. सिचुएशन फिर से आएगी, अलग रूप में आएगी। तो अभी अपने पर काम करना है। मैं क्या करती हूँ जब भी मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से खत्म हो गया, दिस इज अ लाइफ लॉन्ग Mm. जर्नी, तो मैं अपने थॉट्स को लिखना शुरू कर देती हूँ। Yes. Yes. आई स्टार्टेड राइटिंग ऑन डायरी एवरीथिंग दैट व्हाट आई एम फीलिंग। तो जब मैं I have लिखती हूँ ना, started writing in WhatsApp. I have one own group I have दैट इज created. ऑल्सो गुड, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। वी हैव टू Mm. एक्सप्रेस इन गुड वे। Yes. तो जैसे गुस्सा आ रहा है तो मैं क्या करती हूँ? वॉक करनी शुरू कर दो। बैठे Mm. हो, खड़े हो जाओ,
खड़े हो, चलना स्टार्ट कर दो, चल रहे हो, Yes. घर से बाहर Movement. निकल जाओ। मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, Very टेक गिव important. मूवमेंट मेडिसिन। यस, क्योंकि Right. फंसे हुए हैं हमारे अंदर वो इमोशंस, अंदर स्टक किए Exactly. हुए हैं, उनको बाहर हम्म निकलना है। देयर लाइक स्विच बटन होता है ना, वो ऑन हो चुका है अभी। अगर हमने हम्म उसको बंद करना है धीरे से, तो पहले बाहर जाना पड़ेगा, उससे मूव होना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा अपनी बॉडी को, मूवमेंट देनी पड़ेगी। तो धीरे करेक्ट। धीरे करके पॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये ऐसा नहीं कि एक दिन से हो जाएगा, क्योंकि इतने साल लगे हैं आने को वो चीज, तो एक दिन से इट्स नॉट नहीं मोमेंटली होता। रिलीफ के लिए शॉर्ट फिक्सेस नहीं यूज करने। तो हमने क्या करना है कि लाइफस्टाइल की तरफ ध्यान देना है हमारा। हम किन से उठते बैठते हैं, क्या बातें करते हैं, कौन सी गॉसिप होती है हमारी, सुबह एग्जैक्टली। उठते टाइम क्या करते हैं, रात को सोने से पहले क्या करते हैं, वो बहुत 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 मैटर करता है। मॉर्निंग टाइम हम्म जब हम उठे हैं, सोने से 15 मिनट पहले हम क्या कर रहे हैं, वो हम्म हमारे मूड को बहुत इफेक्ट करता है। कि हम राइट। बच्चे के साथ कैसे बात करेंगे, और अपने हस्बैंड के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। सो हम्म दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी कैन वर्क ऑन। Yes, yes. And Manjit, what I have observed, no, so I had in some of my relatives, not clients, clients actually generally I have teens and preteens, no, so they will listen whatever we say, but some of the relatives or elder people, they will say, no, I don't have time to write down my thoughts, or if we ask them to write, "मैं करेंगे क्या है Yeah, मतलब." They are not fascinating. understanding really it works. It is really Yes, valuable, this thought writing or yes, gratitude or journal writing, everything really it works. But when we yes. suggest them to do those things, they are saying मतलब प्रॉब्लम है, गुस्सा हो जाएंगे, सब हो जाएंगे, पर लिखेंगे नहीं। तो बिकॉज अपने एक्सेप्टेंस की, या देर इज अ लैक ऑफ एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, हम्म जो अवेयरनेस है वो सभी को लेना बहुत पसंद है। तो हम जैसे अपनी जर्नी मैंने स्टार्ट की थी, तो मुझे अवेयरनेस हो गई थी कि ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ये सीखना है, ये पढ़ना है। तो नॉलेज अलोन हैज नो पावर, नॉलेज विद एग्जैक्टली। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन, जैसे हमारे टीचर्स ने हमें बताया कि इम्प्लीमेंटेशन, अगर एक भी चीज इस लाइफ में से अगर हमने इम्प्लीमेंट कर ली, मैंने, आपने, सभी ने, हमारी हम्म लाइफ चेंज हो जाएगी। हम्म इम्प्लीमेंटेशन तभी आती है जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमसे मिस्टेक्स होती, हम में भी फ्लॉज हैं। राइट। जब हम वो चीजों को, मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, उस चीज को समझते हैं, अब हम इन लाइफ कर रहे हैं, तो हम भी काफी सारी मिस्टेक्स आई होंगी। बट हम्म एक्सेप्टिंग दोज मिस्टेक्स, होती है ना, बोलने में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार स्क्रीन अच्छे से, बहुत सारी हो जाती है मिस्टेक्स। बट बढ़ते राइट। रहना है आगे, उसको एक्सेप्ट करते। दैट इज ओनली हम्म वे, दैट इज ओनली की राइट। टू सक्सेस। हम्म तो अगर हमें लगता है कि जर्नल क्या कर लेगा, लाइफ इज वेरी सिंपल, सच्ची में वी मेक हम्म इट कॉम्प्लिकेट। हम राइट। कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, हम इसको इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं हमारी लाइफ को। माइंड इज ओनली द लिमिटर ना, माइंड इज ओनली लिमिटर। इफ यू आर थिंकिंग कि राइटिंग से क्या होगा, जर्निंग से क्या होगा, दैट इज ओनली मीनिंग कि हमें अपनी लाइफ में अपनी इंपॉर्टेंस नहीं पता है, कि राइट। हमारा वर्थ क्या है, हमारा हमारी कीमत हमारी जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है। बजाय कि ड्रामा की तरफ ध्यान दें, हम गोल फोकस्ड हों, करेक्ट। कि जो हमने अचीव करने हैं अपनी लाइफ में, जो ड्रीम्स हैं, उन पर ध्यान दें। दैट इज हम्म वेरी इंपॉर्टेंट। तो यस मोटिव, यस। आई थिंक, मुझे लगता है कि मोटिवेशन की कोई कमी नहीं होती है। मोटिवेशन हमें बच्चे से बहुत मिलती है। जब भी कोई ऐसा सिचुएशन आता है, दैट इज ओनली द अपॉर्चुनिटी कि हमने खुद पर काम करना है। जब टेंट्रम थ्रो एग्जैक्टली। होता है, कॉन्फ्लिक्ट करेक्ट होता करेक्ट। है। यस, हम्म या तो ये इमोशनल बैगेज, generational trauma, those kind of words nowadays we are listening so much. So do you think कि ये जो childhood trauma है, it is not only because of our childhood, maybe we got it from our parents, so that those baggage is getting carried on. यस, यस। सो ये सारी चीजें आगे पास ऑन होती हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स को जितना उनको बेस्ट पता था उन्होंने किया, जैसे हम अभी, हमें जितना बेस्ट है हम बात कर रहे हैं, पता है। Right. हो सकता हम्म है कि इससे भी ज्यादा बहुत सारी नॉलेज हो, पड़ी हो, पर जितना हम हम्म इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, वो हमें उसकी नॉलेज है। तो ऐसे ही हमारे पेरेंट्स के पास भी जितनी इंफॉर्मेशन थी, नॉलेज थी, वो अपना बेस्ट कर रहे थे। तो बजाय कि राइट। हमारे साथ बुरा हुआ है, हमारा इमोशनल बैगेज बहुत बड़ा है, बजाय कि दूसरों की तरफ गलती निकालने और ब्लेम, विक्टिमहुड में जाने की बजाय हम इस चीज पर ध्यान दें, अब हम क्या कर सकते हैं। बिकॉज अवेयरनेस के करेक्ट। साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम्म जब हमें नॉलेज मिलती है, तो उसके साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है हमारे ऊपर। जब हमें बच्चा दिया है भगवान ने, एज अ दैट इज द बिगेस्ट
ब्लेसिंग इन आवर लाइफ, तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अभी अगर हमारे साथ बुरा हुआ है तो हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, दैट इज इन आवर हैंड। हम्म। ना बजाय कि दूसरों के ऊपर डालने के कि मेरे पेरेंट्स ऐसे थे, मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ऐसी मैं वैसी, तो मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो अभी तो है ना हमारे पास अपॉर्चुनिटी, अभी तो हमारा माइंडसेट है ना समझने के लिए। तो अभी एग्जैक्टली। एक्शन लें, आज से स्टार्ट करें। मेरा तो यही है कि मैं यही सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, पीछे जो हुआ सो हुआ। हो सकता है बहुत बुरा हुआ हो, बट आई हम्म। थिंक वो बुरा होना मेरे लिए जरूरी था, वो एंटर हम्म। होनी मेरे लिए जरूरी थी। मुझे अकल हम्म। नहीं आनी थी सच्ची में। अगर हम लाइफ में करेक्ट। पेन और चैलेंजेस को बर्दाश्त नहीं करते हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम उसको ओवरकम नहीं करते हैं, बहुत सारे सिग्नल आए जहां पर मैंने प्रोकेस्टिनेट किया। जब मुझे हम्म। अब मेरी स्टोरी में जब मुझे लगा ना कि अभी आईबीएस हो गया, अभी जॉब नहीं करनी है, बाहर सोशल एंजाइटी है, तो सबने कहा आसपास शादी कर लो, तो मैंने शादी कर ली। तो उसके हम्म। बाद मेरे पास ऑप्शन था शादी करने की नहीं करनी था, तो उसके बाद बच्चा कर लो, मेरे पास ऑप्शन था, पर मैंने बाहर की सुनी, अपने पर राइट। फोकस नहीं किया। तो हम्म। इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स कि उनकी वजह से मैंने डिसीजन लिया है, नो, आपने डिसीजन खुद की चॉइस से लिया है और आज भी आपने अपनी खुद की करेक्ट। चॉइस से ही लेना है। सो हम्म। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक चार्ज एंड एवरीथिंग गेट चेंज्ड, अगर हम खुद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं। Correct, correct. Or emotional baggage may I want to add something like unknowingly as a parent, no, maybe we face so much of problem in our childhood. Like sometimes as a parent means unknowingly only we used to tell, okay, I did not get book also. I used to walk 5 kilometers and you are not able to do this. So sometimes, Yes. so by mistake, unknowingly also those kind of things we are passing. So as a Hmm. parent, we have to be very careful, means how we Hmm. are talking to our kids. Speaking. So it is very important ke sharing our experiences, it is important. I can understand that. But Yes. how we are expressing, and it is Hmm. not necessary that all information needs to be passed to them, right? So Hmm. वो बहुत important है। ये अगर हम बंद किए तो थोड़ा थोड़ा हमारा जो हमारा प्रॉब्लम उन तक नहीं जाएगा। यस, सही बोल रहे हो। कई बार कुछ भी नहीं करना होता बच्चे के साथ, कई बार बस बस प्रेजेंट रहना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जैक्टली। 90% पेरेंटिंग यही है, आपने प्रेजेंट रहना है। 90 की 99% यही है पेरेंटिंग, प्रेजेंट रहना है, कुछ भी नहीं करना करेक्ट। होता, जस्ट ऑब्जर्व। चाइल्ड को जो हम्म। मिल रहा है उसको ऑब्जर्व एंड डिसिप्लिन देम विद प्रॉपर डिसिप्लिन, फ्रीडम एंड प्रोटेक्शन, डिसिप्लिन इज, तो वही यस। चीज करनी होती है 99%। सो लिव हम्म। इन द प्रेजेंट मोमेंट इज वेरी बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम माई मेंटर कि स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट। मुझे मुझे जब पता लगा ना कि मैं 31 ईयर 30 ईयर्स की होगी बट पास्ट में हूँ, इतना शौक हम्म। लगा ना मुझे, इट वॉज नॉट एबल टू, आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेप्ट राइट, राइट। कि मुझे ऐसा कहा जाए तो पास्ट में जी रही हूँ। तो हमने हम्म। प्रेजेंट में कोशिश करनी है बच्चे के साथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो तभी हो पाएगा अगर हम पास्ट की चीजों को बार बार रिपीट करना बंद करेंगे। बंद करें। राइट। सो my questions are finished. So let me see if some of our viewers have any of the questions. So it was a very Yes. nice live session, Manjit. It is very important, and I feel like we both we know each other almost for last 2 years, and because of our this childhood trauma, we both got connected. It is Yes. right. Because of So because of this, right? Because it is maybe we are not coming live, but almost every week we are talking. We got हाँ, this bond. There is a bond between us which was formed. So हाँ, it was yeah. very nice talking with you, Manjit. Thank you Thank you so so much. much. Yes. यस, ऑल्सो आई वॉन्ट टू ऐड कि जैसे हम ऐसे कनेक्शंस बनाते हैं हमारी लाइफ में ना, जो हमें समझें, जो स्पेस दें विदाउट एनी जजमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें किसी चीज की और की जरूरत नहीं होती, मटेरियलिस्टिक होती नहीं है, हमें बस एक सुनने वाला चाहिए। और जैसे Correct. हमारी जो फ्रेंडशिप ऐसी स्टार्ट हुई कि एक सुनने वाला चाहिए, एक स्पेस Mm, चाहिए। कई बार mm, हमने कोई सोल्यूशन नहीं लेना होता, हमने बस yes, सुनाना yes. होता है, प्रेजेंट रहना होता है। अब Mm, बच्चों को भी नहीं चाहिए, आई थिंक। exactly. So Mm, yes, it was a nice session. Thank you for inviting me. And yes, yes, yes. looking forward for more sessions like Yeah, this. yeah. Sure, sure, Manjit. Okay. Yes. Okay then, Thank you, Manjit. everyone. Yeah. Thank you everyone for joining. Yeah. Bye, Manjit. Bye bye. Bye bye. Take care. Yes.